Viewers, the festival of Eid has been hijacked by the ecosystem, the same ecosystem that thrives on the politics of fear. The opposition's toolkit is simple. You know it. Amplify a policy, twist its intent, and paint it as an assault on identity. When authorities call for prayers to be held in designated spaces rather than spilling onto roads, it's not an attack on faith. It's a plea for harmony in a shared public space. When the Waqf bill seeks transparency in a system riddled with corruption and mismanagement, it is not a conspiracy against Muslims. It's a move for transparency. But these practical measures, procedural measures, are spun into tales of oppression. Each word dripping with the insinuation that a community's very existence is at stake. Viewers, Owaisi thunders about Islamophobia, Mehbooba Mufti wails about injustice, but their voices echo hollow when you see the pattern. This is not about Eid prayers. It never was. It's about preserving a vote bank. It's about clutching onto a narrative that keeps people afraid, suspicious, and tied to their patronage. So that they say, oh yes, Owaisi Rahmatullah or Mehbooba Rahmatullah. The BJP has called out this fakery, pointing to an ecosystem that thrives on creating discord. People like Owaisi and Mehbooba Mufti stand as the chief architects of the opposition's fear factory. Their voices raised not in defense of faith, but in a shameless bid to perpetuate division. Viewers, they brandish the charge of Islamophobia, a term now stripped of its meaning through overuse or misuse, as a shield to mask their agenda. Not the safeguarding of Muslim dignity, but the ruthless exploitation of Eid to entrench their influence. Viewers, the pattern is as predictable as it is pernicious. These self-appointed champions care not for the faithful who gather in prayer, but for their vote bank and vote bank alone. Viewers, the fear-mongering surrounding Eid is a sacrilege of the highest order, a deliberate violation of a sacred moment for the sake of political gain. It's not the policy, viewers, that threatens the Muslim community, but the relentless distortion of those policies by those who claim to speak in its name. Owaisi, Mehbooba Mufti and company are not protectors. They are profiteers, plundering the goodwill of a festival to fuel their relevance, covering their politics in the garb of piety. Viewers, let's get this straight. This ecosystem that keeps insisting Muslims are living in fear in India is pushing a narrative that's wearing thin. Take Owaisi. Is he stopped from speaking in parliament or rallying crowds because he's a Muslim? Not at all. He's as vocal and visible as ever, commanding attention without a hitch. Then there's Mehbooba Mufti, claiming Muslims are gripped by terror, you see, yet she enjoys security and privileges that go beyond what most ordinary citizens, Muslim or otherwise, could expect. The picture these voices paint does not hold up when you see them thriving in the very system they critique. It's not about genuine concern, viewers. It's about keeping a storyline alive for political leverage. Most Muslims, like everyone else here, are just living their lives and they don't care about the Owaisis of the world. It's time we dismantle the dystopia they're peddling. लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। दूसरी तरफ से हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह मुसलमानों के साथ इस वक्त ज्यादतियां हो रही हैं, उसके लिए भी हमारा दिल जो है बहुत दुखी होता है। लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। प्रदेश और देश के अंदर सभी धर्म के लोगों के साथ में बराबरी का सलूक होना चाहिए और अगर एक रोड सड़क बंद करके कराया जा सकता है तो दूसरे त्योहार की नमाज आरती नहीं होनी चाहिए। जब मैं घर के टेरिस पर जो मेरे बाप की जमीन है, जो मैंने बनाया है, मेरा घर है अपना, उस पर मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। अनडिक्लेयर इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर हिंदू राष्ट्र है। ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म करने का राइट है सबका,
लेकिन क्रिटिसिज्म कोई तर्क पे तो होना चाहिए। You heard the reactions. Let's open this up. Karan Verma, Advocate Adil Hassan, National Spokesperson of the AIMIM, IP Singh Ji, National Spokesperson of the Samajwadi Party, Ravi Srivastav, political analyst, Professor Monojit Mondal will be joining us shortly, and Sanju Verma, the National Spokesperson, will be with us. IP Singh Ji, ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखिए बैरिकेडिंग है, और ये बैरिकेडिंग इसीलिए लगा दी है क्योंकि एटसेट्रा जो उन्होंने बोला, सर इस लॉजिक के हिसाब से तो हर मंदिर के बाहर बैरिकेडिंग है, तो लोग बोलेंगे कि देखिए भक्त खतरे में है, हिंदू खतरे में है। नहीं ये अब्सर्डिटी हर रोज कहां से लाते हैं आप लोग? प्रणेश जी, हाँ प्रणेश सुनिए, देश का संविधान सभी जो मत और मजहब हैं सबके लिए बराबर है। आज देश में हर्षोल्लास से ईद मनाई जा रही है। मैं सभी मुस्लिम भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं, और जिस तरह से बीजेपी के लोग उपद्रव करना चाहते थे, शांतिपूर्ण तरीके से यह त्यौहार संपन्न हुआ है। और ईदगाह, लखनऊ का ईदगाह ऐसा ईदगाह है कि जब राजनाथ सिंह 12-14 महीने के चीफ मिनिस्टर थे, वो भी बतौर चीफ मिनिस्टर ईदगाह गए थे। जितने मुख्यमंत्री रहे, अगर वो रहते हैं, ईद का जब भी अवसर आता है तो वहां शामिल होते हैं। विपक्ष के जो नेता होते हैं वो भी शामिल होते हैं। एक मंच पर सभी दलों के लोग नजर आते हैं। ये पहली बार है, आपातकाल है, इमरजेंसी है देश में, कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी घर से निकले, उनको रोका गया, बैरिकेडिंग की गई, स्पेशल उनको रोका गया, और रोककर उनके काफिले को, उनकी सुरक्षा को पूरी तरह रोक दिया गया। आधी पौन घंटे तक वहीं वो खड़े रहे सड़क पर, पुलिस के लोग जवाब नहीं दे रहे थे, और जब खोला गया तो एक गाड़ी देखिए सर, इतना समय नहीं होता है कि मैं ये आपकी इमरजेंसी की कहानी सुनूं। अगर इमरजेंसी में, जब असली इमरजेंसी थी उस समय अगर आप जेल गए थे, मुझे पता नहीं है आप उस समय थे नहीं थे, उस समय अगर जेल गए थे या कुछ आप पे हुआ था तो उस पर अपनी कहानी जरूर लिखिए, सब पढ़ेंगे। लेकिन आपने शुरू में कहा कि अच्छे से हो गया ईद, फिर आपको लगा अरे सब अच्छे से हो गया तो फिर डिबेट कैसे करेंगे हम, फिर आपने कहा ये उपद्रव करना चाहते थे, फिर आपको लगा कि ये भी कम पड़ेगा, फिर आपने बोला अखिलेश जी को रोक दिया गया। अरे ऐसा कौन सा इमरजेंसी है कि हर चैनल पे अखिलेश जी की जो उन्होंने कहा है वो चल रहा है? इमरजेंसी में चलता था क्या? पूछिए उनसे, ये क्या इमरजेंसी है? रवि श्रीवास्तव सर, ये महबूबा मुफ्ती, ओवैसी, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग, बस इतना सा सुनिए सर, वो बोल रहे हैं बैरिकेडिंग लगा दी इसीलिए मुसलमान खतरे में। सर इसका कोई लॉजिक है? आपके सोसाइटी के बाहर भी बैरिकेडिंग होगी सर, सिद्धिविनायक मंदिर चले जाइए, वहां देखिए बैरिकेडिंग। प्रणेश, आपके माध्यम से देश के सभी देशवासियों को ईद की बधाई, और आज नवरात्रा है पहला, उसकी भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, मैं तो सिर्फ एक न्यूज पे विश्वास रखता हूं, और वो न्यूज आई है जयपुर से, जहां पर नमाजियों के ऊपर शिक्षा से, प्यार मोहब्बत से सब त्योहार साथ साथ मनाते आए हैं। यहाँ पे कोई छत पे अपनी ईद नहीं मनाएगा, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, या सड़क पे नहीं पढ़ेगा, या वहां नहीं पढ़ेगा। इस तरह की नौटंकी आज के पहले हम लोगों ने इन पिछले 10 सालों को छोड़ के पहले कभी नहीं देखी, और उसकी कोई जरूरत भी नहीं। तो इसने बैरिकेडिंग की, किसकी बैरिकेडिंग की, इसलिए की, यहाँ कोई खतरे में नहीं है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, यहाँ तो पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। मुझे तो यही दिखाई देता है। सर अब आप क्या कर सकते हैं सर? मैं तो आपको सही चीज सिर्फ बोल सकता हूं। अब आपको क्या लगता है, उसका इलाज मेरे पास नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, आपको क्या लगता है। लेकिन फिर भी आप बैरिकेडिंग पे जवाब नहीं दे रहे। अगर बैरिकेडिंग मतलब ये है कि लोग खतरे में हैं, तो सिंघू बॉर्डर पे जो सर 1.5 साल बैरिकेडिंग कर दी थी, उसका क्या मतलब था वो भी बता दीजिए। लेकिन आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप थोड़ा समय लीजिए, सोचिए। और आदिल हसन, ईद मुबारक सबसे पहले। आदिल भाई, आपको अच्छे लग रहे हैं आप। अब ये बताइए कि क्या आपको आज ईद की प्रेयर्स में कोई दिक्कत आई? किसी ने आपसे कहा कि नहीं 5 ही मिनट में खत्म करना, तुम उठ जाओ? नहीं, आज तो जो सच्चाई है बिहार में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नीतीश जी
जो भाजपा को कंट्रोल किए हुए हैं। नीतीश जी खुद गांधी मैदान में थे और ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। यही इसीलिए तो भाजपा नीतीश जी को आगे की हुई है। राष्ट्रगान में नीतीश जी ने ठीक से नहीं भी किया, उस पर कोई केस नहीं होगा, लेकिन दूसरे मुद्दे पर रहता, अगर कोई आदिल या इमरान होता तो कितना एफआईआर बीजेपी करता और संजू वर्मा सुबह से शाम तक हम ही लोग को टारगेट करती। लेकिन नीतीश जी बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को कुछ कंट्रोल किया। भाजपा का प्रकोप अभी कम से कम बिहार की पावन धरती पर नहीं, और उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह कभी ना हो भाजपा का प्रकोप, क्योंकि भाजपा के बाद सिवाय नफरत के और कुछ नहीं है। तो आदिल भाई एक काम कीजिए, अभी आगे जो चुनाव आ रहे हैं ना, आपके जो सदर साहब हैं उनको कह दीजिएगा कि चुनाव प्रचार में यही बोल दें कि नीतीश जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं को वोट दीजिए, एआईएमआईएम के कैंडिडेट को मत दीजिए क्योंकि मुसलमान सेफ है, ये बोल दीजिएगा इस बार। मेरे सदर साहब ने नीतीश जी को दावत दिया था कि नीतीश जी भाजपा में मत जाइए। भाजपा में, क्योंकि आपने कहा था भाजपा में, नीतीश जी ने खुद कहा था भाजपा में जाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। नीतीश जी का एक कद अब बड़ा कद है, जयप्रकाश जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी का। अगर नीतीश जी भाजपा में अगर विलय करना है, अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को खत्म करना है, तो कोई नहीं रोक सकता है। हम आज भी बोलते हैं अगर नीतीश जी भाजपा को छोड़ देंगे तो नीतीश जी का कद हमेशा ऊपर रहेगा। ये राजद की गलती थी, जो राजद ने इंडिया अलायंस से उनको हटाया। बट आदिल भाई आप देखिए, बिहार में कोई दिक्कत आपको नहीं हुई, अखिलेश यादव को कोई दिक्कत उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, वहां महाराष्ट्र में वारिस पठान जो सड़क पे नमाज अदा कर रहे थे उनको दिक्कत नहीं हुई। तो दिक्कत हो किसको रही है? ओवैसी और महबूबा मुफ्ती को, जो चाहते थे कि दिक्कत हो लेकिन दिक्कत हुई नहीं। संजू वर्मा, आप लोगों ने तो इनसे इनका नैरेटिव छीन लिया, कहीं कुछ दिक्कत हो जाती तो फिर डिबेट होती। प्रणेश, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। जो एआईएमआईएम के स्पोक्स पर्सन है, क्योंकि उन्होंने मेरा जिक्र किया तो बता दूं, इन दी just concluded few months back Maharashtra Assembly elections of 2024, AIMIM contested on 1616 seats, Pradesh, and they won just one with a strike rate of 6.25%. The BJP contested on 149 seats and won 132 with a strike rate of 89%. And I think, winning at the hustings is a huge barometer of what the public perception about certain politicians and certain political parties is. तो इसलिए जहां तक चुनावी राजनीति की बात है, वहां तो चाहे एआईएमआईएम की बात करें या उद्धव सेना या फिर कांग्रेस, इन सबका सूपड़ा साफ हो गया था महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। दूसरी और सबसे अहम बात, पर्चा नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम विक्टिम हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट का वर्डिक्ट का उल्लंघन करते हुए दिन में 4 बार नमाज पढ़ी जाएगी, वो भी रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, जब पाबंदी है तब भी लाउड स्पीकर चलाएंगे और फिर कहेंगे कि हम विक्टिम हैं। वी विल टॉक अबाउट गोधरा राइट्स, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट 59 हिंदूज इंक्लूडिंग इन्फेंट्स burnt at this in the most heinous manner in the साबरमती एक्सप्रेस। क्योंकि वो यदि एक्नॉलेज करवाएंगे लोग तो फिर कहा जाएगा कि भाई मुसलमान तो कभी खतरे में थे ही नहीं। तो जो नैरेटिव है, इवन 1978 संबल राइट्स, 184 पीपल उनको जिंदा जला दिया जाता है। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद संबल राइट्स के आरोपियों को फ्री रन, फुली क्लीन चिट दे देते हैं, और फिर भी नैरेटिव क्या है कि मुसलमान खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। गोधरा के बाद भी कहा जाता है कि मुसलमान खतरे में है। संभल के बाद, साबरमती के बाद, हाशिमपुरा राइट्स के बाद, भागलपुर राइट्स के बाद, अलीगढ़ राइट्स ऑफ 2008 के बाद, देगंगा राइट्स ऑफ 2010 के बाद कहा जाता है मुसलमान खतरे में है, जबकि विक्टिम हिंदू होता है। भरतपुर राइट्स ऑफ 2011 के बाद कहा जाता है मुसलमान खतरे में है, जबकि हिंदू विक्टिम है। 2012 आजाद मैदान राइट्स के बाद, जहां पर विमेन कॉन्स्टेबल्स वर हैकेड, उसके बाद कहा जाता है हिंदू नहीं मुसलमान खतरे में है। एंड वारिस पठान has lost one election after another। अब तो उनकी पार्टी ने उनको बाइकला से टिकट देना भी बंद कर दिया है। वारिस पठान has lost relevance in AIMIM। He is limited to only television studios, क्योंकि बाइकला की जनता वारिस पठान कौन है ये 6-7 साल से भूल चुकी है। सो वारिस पठान सिंह, मैं रोड पर उतरकर नमाज पढ़ूंगा, दिस इज absolutely so typical of people like Waris Pathan। No, but even then nothing happened to Waris Pathan. He wasn't picked up by the police or thrown inside jail. So खतरे में कौन है? अब यहां पे जो लोग हैं वो तो खतरे में नहीं है,
हाँ, इनका नैरेटिव जरूर खतरे में। करण, नहीं, मैं आपको बता दूं प्रणेश, खतरे में कौन है? खतरे में जो इनकी दुकान थी पूरी ऑफ लैंड ग्रैब, ऑफ लूट, वो अब खतरे में है। You know, one of the biggest persons who's exposed in all of this is Asaduddin Owaisi, and by his own admission, Pranesh, it was he who in September made this statement that there are 1,21,000 properties in UP of Waqf, out of which 1,10,000 do not have a paper. अब आदिल जी इसको कैसे डिफेंड करेंगे? खुद उनके सदर ने ये बात कही। कागज नहीं दिखाएंगे तो बहुत दूर की बात है, कागज है ही नहीं इनके पास। और दूसरी बात प्रणेश, who has mixed politics with religion here? ये जो सेक्युलरिज्म के सूरमा सब बनते हैं, क्या ईद एक ओकेजन है? क्या मस्जिद एक जगह है जहां पे आप एक पॉलिटिकल मैसेज दो वक्फ के अगेंस्ट? कौन मिक्स कर रहा है इस समय रिलीजन और पॉलिटिक्स को? ये बताएंगे आईपी सिंह जी। आईपी सिंह जी कह रहे हैं आपातकाल है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। आईपी सिंह जी, आपको शायद पता नहीं है, आपके जो नेताजी थे मुलायम सिंह यादव, वो अब है नहीं इस दुनिया में। 19 महीने जेल में रहे थे, वो थी इमरजेंसी जब उनको लॉक कर दिया गया था जेल में। यहां पे 39 हमले रिलीजियस प्रोसेशंस केवल हिंदुओं के होते हैं पिछले साल, तब भी दे डोंट क्राई विक्टिम। तो जरा बात को आप समझिए। अगर इक्वालिटी लाना, बिकॉज आपके जमाने में तो वो होता था कि मुजफ्फरनगर राइट्स हुए, उसका जो रिलीफ है वो केवल और केवल मुस्लिम्स को मिलेगा। आप तो वलीउल्लाह खान को रिलीज कराने के लिए जेल में पहुंच जाते थे, अखिलेश यादव। तो अब वो चीज अगर नहीं हो रही है, दैट डजंट मीन इमरजेंसी हो गई है। दैट इज व्हाट इज ट्रू सेक्युलरिज्म, दैट इज व्हाट इज जस्टिस। उसमें आपको, इफ यू वांट टू whip up hysteria, you stand exposed today because Waqf is a reality that's going to happen. Waqf amendment has been told by K. Rahman Khan. What is it that they cannot digest? और कौन सा ग्रुप है ये प्रणेश? AIMPLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसने कहा वुमेन शुड नॉट एंटर मस्जिद। अगर एंटर भी करना है सेग्रीगेटेड स्पेसेस में करना है। टुडे दे हैव अ प्रॉब्लम इफ वुमेन आर वक्फ बोर्ड मेंबर्स। So their entire mindset of patriarchy, holding women back, their regressive mindset is exposed today on Eid. That is what is the problem with them. ये है खतरे में, इनका mindset, इनकी दुकान है खतरे में। Professor Mondal, Mamata Banerjee had, she said something. I'm sure you remember. If you don't, I can play it out. जैसा आप बोले। No, first of all, let me wish Eid Mubarak to all of you, including the persons from BJP who doesn't understand the value of such sacrosanct, event, and even on such a day, they would play this kind of divisive politics. This is a very sacrosanct occasion for not just our Muslim brothers, for the entire country, and let me wish all of them good luck for the next few years. The fact remains that the BJP is a party that believes in the politics of division, politics of poisonous communal writing, and on top of that, by writing only, they have come to power. Who doesn't understand, who has forgotten the rise of BJP in the political horizon of India since late 1980s? It is through violence and communal riot they have risen to prominence. It is history, and there are innumerable number of researches across the globe on BJP's connection with communal riots and their political rise in political power. The fact remains that the political party that I represent at one point of time, or still I represent, All India Trinamool Congress, they are a party which believes in humanity, religion of humanity, by following none other than Gurudev Rabindranath Tagore. When you talk about Mamata's very special comment, Gerua comrade, we believe that was happening even in Oxford. And look at how they have disgraced a group of SFI supporters along with an RSS, two RSS men. They came together. Professor Mondal, you see, people here on the panel were talking about undeclared emergency. Such is the state of undeclared emergency that you spoke uninterrupted without even a question. I just, took your name और आप शुरू हो गए. But if I ask you a question and if you don't have an answer, many on the panel, I'm not saying this to you, many will say, look, there is emergency, the anchor doesn't let us talk. Mamata Banerjee said, हम जानबूझकर एक गंदा धर्म जो एक जुमला पार्टी ने बनाया है, उस धर्म को नहीं बांधते. Which धर्म has the BJP made? A fake narrative of Hindutva.
They don't follow even the father of Hindutva. What is Mr. Hindutva, Chandranath. sir? What is They don't Hindutva follow according it. to you? They believe in a fake narrative of Hindutva. No. What is the right narrative of all of them Hindutva? are fake What is Hindus the because right narrative they of believe Hindutva? in Professor violence. Mondal, let's have it They tonight. killed the But sir, you biggest tell me the Hindu right in narrative. country, No, I'm Mohandas curious now. Karamchand Gandhi. No, They I am killed curious. I the want you to biggest tell us Hindu in the this right country. narrative of Their Hindutva. forefathers. Their forefathers killed the biggest Hindu in this country. Look, Professor Mohandas Mondal, you Karamchand can talk Gandhi. over me. One of their- one of No. their You're not MPs answering my question. called The trouble is, Ravi Srivastava, when Mamta Banerjee says something like this, the viewer will say that there is a pattern. Sanatan was cancer, HIV, leprosy, etc. And now she says this about Ganda, Dharma and Danga, etc., etc. What's going on? What she has said, she has not named anything, but the fact is the whole country knows that which religion she referred to. This is the same religion. We talk about the Muslim religion, which is 1,500-year-old, but we know our religion, the so-called Sanatan Dharma, which has been there for 5,000 years, what they did to their own people, how they tortured their own people, how they divided on the caste basis, on color basis, on whatnot. Oh. What kind of patriarchy they did. You must to their have, own you know, people. this is a result. Look, I am confident, in fact, more than confident, that you are saying what you are after watching a YouTube video made by a person who stays not in India, but in Germany. I'm not sure which country, but I hope you get the context. Sanju Verma. Pradesh, thank you so much. I will just very quickly say this. I will not call Monojit Mandal communal, divisive, polarizing, because these are the adjectives that you use for the BJP. Let me just come straight to the point. 2016 Malda riots under the long and incompetent nose of Mamta Banerjee. 2017 Bhadoria riots under Mamta Banerjee. 2018 Asansol riots under Mamta Banerjee. 2019 Jadavpur riots under Mamta Banerjee. 2021 Sitakulchi riots under Mamta Banerjee. Pradesh, 2022 Birbhum riots under Mamta Banerjee. 2023 post-poll पंचायत वायलेंस अंडर ममता बनर्जी, और जिस ममता बनर्जी की आप दुहाई देती है आपकी सारी पार्टी और आपके प्रवक्ता, बता दूं 2012 आफ्टर द ब्रूटल पार्क स्ट्रीट गैंग रेप ऑफ सुजेट जॉर्डन, ममता बनर्जी said women who go to discotheques and nightclubs invite rape upon themselves. And 4 years back, when a 14-year-old was gang raped by TMC councillor and his friends, the famous in Hansa Khali gang rape, Mamta Banerjee asked, was it really a rape? Or was it a love affair gone wrong? Or was the girl pregnant? This coming from a woman chief minister. इसलिए यहाँ बैठकर बीजेपी को नैतिकता का भाषण मत दो. I will repeat very quickly in 20 seconds, Pranesh. From the 2006 Aligarh riots to 2008 Dhule riots to 2010 Devganga riots to 2011 Bharatpur riots to 2012 Pokrajhar riots to 2012 Azad Maidan riots to 2013 No, the list is long. All of this is documented. There are, I believe, 65 cases of communal violence in West Bengal between January 2021 and June 2022. This is as per one RTI query. You can check, Professor Mondal. But Karan, people like Ravi Srivastava, who do not even think twice before uttering what he did. If you ask them about the castes in Muslims, चुप हो जाएंगे वो, बोलेंगे you're trying to divide, polarize, etc., etc. No, that is because Pranesh, he enjoys the liberties that are given by this great civilization, the Sanatan Dharma, which he so vehemently abuses. He knows there will be no consequences. He knows there will be no repercussions. He can get away with it because there are mainstream political parties who can get away by saying Sanatan needs to be eradicated and they've likened it to dengue and malaria. He doesn't have the guts to question practices of other faiths because he knows that a Sartan se juda music would be echoing down his doors. That is why Ravi Srivastava doesn't have the guts to do that. इनको नहीं दिखेगा रवि श्रीवास्तव को कैसे in the name of religion so many incidents have occurred across. There he will say, you know, terror has no religion, communal rights have no religion, but here he has the guts and the temerity to abuse an entire dharma on national television. Ravi Srivastava
Do not mistake someone's benevolence and someone's tolerance as their weakness. You know, he You says are getting away with so-called it? Sanatan. So-called Sanatan. Now this comment will haunt you. People will ask you for answers. So-called Sanatan, Ravi Srivastava, really so-called Sanatan. कुछ बोल के देखिए about any other faith, you will know. Do anything. You are cowards. बोलिए सर, और बोलिए. I'm saying you are cowards. You don't have any guts. You only listen it and quote here on the TV debate. Sir, thank God we don't have guts. Thank God for that. You see you see one peaceful, you know what peaceful people, the so-called peaceful people do? When their religious sentiments are hurt, don't you know? Just Google what they do. The silence is not cowardice. This is deference for the rule of law and constitution. ये शरिया नहीं मानते हम कि किसी का हाथ काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. वो जब पैनल पे आपको 4 लोगों ने बोल दिया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेयर अच्छे से हो गई, आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, तो आप सनातन को गाली देने लगते हैं. आदिल हसन वारिस पठान आपके नेता हैं, वो उधर देखिए उन्होंने जो वीडियो बनाई है आज बॉम्बे में, उन्होंने नमाज अदा की सड़क पे, कुछ हुआ उसमें? कोई लोगों ने प्रोटेस्ट किया आके उनके घर के बाहर कुछ किया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया था? उन्होंने एक बार गणपति सेलिब्रेशन किया था, उनको माफी मांगनी पड़ी थी. कहां गया था आपका टॉलरेंस? आज सबसे पहले कि आज पूरे देश ने देखा कि करोड़ों लोगों ने ईद की नमाज मनाई, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर ना हमने झंडा फहराया, ना उसके धर्म को गाली दिया, ना डीजे बजाया, ना किसी के धर्म को बेइज्जत करना चाहा. ये पूरी दुनिया ने आज देख लिया पर्दा साहब. बीजेपी के बाद जो कैसेट बजाना है बजा ले. नरेंद्र मोदी जी को बोलिए कि ईद में जब वो बचपन में थे, अपने घर में रहते थे, तो बोलते थे बगल वाले उनके घर में खाना नहीं बनता था, मुसलमान के घर से खाना आता था. कम से कम उस एहसान को तो उतार दे. किसी मुसलमान, भारतीय मुसलमान से तो गले मिल ले. विदेश के शेख से इतना गले मिलते हैं, भारत के मुसलमान से उस एहसान का. आदिल हसन, एक मिनट, आपको विदेश से बहुत दिक्कत है ना. अभी आप उमरा करने कहां गए थे? चांद पे कहां गए थे आप उमरा करने? कहां गए थे आप? मिलेंगे नहीं, कहां गए थे? कहां गए थे? देश में चले जाते. अगर आपको हाजी करना था, हाजी अली चले जाते. आप क्यों गए मक्का? आप बताइए. आप हाजी अली चले जाते बॉम्बे, वारिस पठान को भी साथ ले लेते. अभी आप बोल रहे हैं कि विदेश नहीं. इसका क्या मतलब हुआ? विदेश का मुसलमान मुसलमान नहीं है कि नहीं? अजमेर दरगाह के जो चीफ हैं, जिन्होंने आज वो पूरा कॉलम लिखा है कि वक्फ पे डराना बंद करो, इज ही अ लेसर मुस्लिम? इज ही अ लेसर मुस्लिम? प्रधानमंत्री है. आप बताइए ना, आप क्यों गए थे विदेश? नहीं, आप बताइए. अगर आपको इतना ही दिक्कत है विदेशी मुसलमान से, जब आपको सूट करता है आदिल हसन, तब आप चले जाते हैं विदेश. आप मक्का नहीं, आप हज करते वहां जाएंगे. और अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई कोई मुस्लिम देश अगर सम्मान दे रहा है, तो फिर आपको दिक्कत है. आपको दिक्कत है. अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो आप नहीं, तो फिर आप नहीं जाते ना, फिर आप हाजी अली जाते. आप क्यों गए? करण, व्हाट डज दिस टेल यू? नहीं, नो प्रणेश, इट्स सो इजी टू एक्सपोज हिम. ये अभी बहुत एकता की बात कर रहे थे यहाँ आदिल. मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अहमदिया भी मुस्लिम है ना, आज उनकी भी ईद है कि नहीं है? या अहमदियों को मुस्लिम नहीं मानते? आगा खानी को मानते हैं कि नहीं मानते? बोरा को मानते हैं कि नहीं मानते? वो सब वक्फ में अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं. वो सब लिख के रहमान खान के रिकमेंडेशंस हैं. आप क्यों आज ईद के पावन अवसर पे आप क्यों आज काला पट्टा बांध के पॉलिटिकल मैसेज दे रहे थे? अहमदियों को मुस्लिम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये बताइए. मोदी जी तो बाद में गले लगेंगे, आप अहमदियों से कब गले लगेंगे? क्योंकि आपके सदर तो कहते हैं वो मुसलमान है ही नहीं. क्या कहना है इस पे आपको? जो आगा खान का ऑर्फनेज का जमीन आपके सबसे बड़े, जो मोदी जी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर जिसके बने हुए, उसी वही जमीन कब्जा किए हुए, अपना बहुत बड़ा घर बना लिया बॉम्बे में. कोर्ट चले जाइए ना, कोर्ट चले जाइए. अगर फिर क्या प्रॉब्लम है तो फिर रूल बनने दीजिए. फिर काली पट्टी क्यों लगाई थी आपने? फिर काली पट्टी क्यों लगाई थी? और सही कह रहे हैं करण वर्मा, आप कह रहे हैं कि मोदी जी हमको कब गले लगेंगे. आप पहले लगा लीजिए अहमदियास को. आज नरेंद्र मोदी का आपने देखा, उन्होंने जो ईद मुबारक वो जो मैसेज लिखा, वो पढ़ा आपने कि नहीं पढ़ा? वो आपको वो पोस्ट खाली दिखा होगा क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं. वो
पूरा पढ़ लिया हूं। उनको बोलिए कि सीमांचल में आके सीमांचल के लोग को घुसपैठ क्यों कहें, मंगलसूत्र छीनने की बात क्यों कहें। अगर है हिम्मत तो एएमयू किशनगंज को पैसा दे देते। संजू वर्मा, मानिटी में सुबह शाम गाली मुसलमानों। गणेश, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, अभी मुझे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बोल रही हूँ, टोकना मत। राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव अंकल, व्हाट डिड ही से? जब जब बूथ लुटेंगे तब तक पत्थर चलेंगे, जस्टिफाइंग द वायलेंस अगेंस्ट द सर्कल ऑफिसर ऑफ संभल अनुज चौधरी। पॉइंट नंबर 1, इसलिए टीवी डिबेट पर बैठकर लॉ एंड ऑर्डर की बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को शोभा नहीं देती है। एंड टेकिंग ऑफ फ्रॉम व्हाट करण सेड, अहमदियाज, आगा खानीज, पासमंदाज, सलाफीज, सूफीज, बरेलवीज, दियोबंदीज, बोडास, अरे इतनी सारी कास्ट है और ये सब कहते हैं कि सुन्नीस के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज तक किसी की फरमाइश की ही नहीं है, किसी की पहरेदारी की ही नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग दैट मुस्लिम कम्युनिटी नीड्स टू डू इज इंट्रोस्पेक्ट एंड rejuvenate their own society, removing the caste fault lines before advising Hindus. And the last point is this, very quickly in 20 seconds. I have said this a zillion times and I repeat, 31% of PM Awas Yojana allocated to minorities, especially Muslims, 33% of Ayushman Bharat allocated to minorities, especially Muslims by Modi government, 36% of PM Ujjwala Yojana allocated to minorities, especially Muslims, and last but not the least, 37% of PM Mudra Yojana also allocated to minorities, especially Muslims, thanks to Prime Minister Narendra Modi. इसलिए मोदी जी को सेक्युलरिज्म का भाषण देना बंद करिए, अखिलेश यादव को बोलिए टू शेड हिज हिंदू। वो जवाब दे रहे हैं। आदिल भाई जवाब दीजिए। आपको एक बात बताइए आदिल भाई, आपको आप कह रहे हैं कि प्रेयर तो ठीक से हो गई, सौगाते मोदी मिला था आपको? भैया मेरे एएमयू किशनगंज को पैसा दे दीजिए, जामिया और अलीगढ़ का बजट बढ़ा दीजिए, बोमा का स्कॉलरशिप बढ़ा दीजिए, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक को स्कॉलरशिप दे दीजिए। जो बैरिस्टर साहब ने 600 करोड़ लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप मांगा वो दे दीजिए। ऐसा है बैरिस्टर साहब का जो अस्पताल है हैदराबाद में, वहां गरीबों का तो इलाज ठीक से हो नहीं रहा है सर। आप बोल रहे हैं ये कर दीजिए वो कर दीजिए, वहां देखिए गरीब मुसलमान वापस आ रहा है। जो मोदी जी ने गरीब मुसलमान को सौगाते मोदी दिया, उससे आपको दिक्कत है। तो आप कहां बोल रहे हैं गरीब मुसलमान का बात सर आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। आप मुझे ये बताइए, महबूबा मुफ्ती जो ये कह रही हैं कि मुस्लिम खतरे में है, कहां है खतरे में? असद साहब तो नहीं है खतरे में, आप हैं खतरे में आदिल हसन? सर जिस तरीके से संभल में जो ब्रुटैलिटी हुई, जो ज्यादती हुई, आपका जयंत चौधरी जी ने और चिराग पासवान ने भी आपको दिखाया, चंद्रबाबू नायडू ने भी दिखाया और नीतीश जी भी दिखाएंगे। सबका लिटमस टेस्ट है, मांझी जी का भी लिटमस टेस्ट है, उपेंद्र कुशवाहा जी का भी लिटमस टेस्ट है। मोदी सरकार अकेले नहीं है, 400 पार नहीं है, बैसाखी की ये सरकार है। एक बात बताइए, चलिए अब आप ये टेस्ट और सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं तो नंबर भी दे दीजिए। नीतीश जी सेक्युलर हैं कि नहीं है? जी भाजपा को इतना कहेंगे, आप नीतीश जी को सेक्युलर मानते हैं? नीतीश जी को भाजपा के प्रकोप में नहीं है, ये मैं मानता हूं आपके सामने। तो ठीक है, प्रचार कर दीजिए, खराब हो गई है, प्रचार कर दीजिएगा उनका। अभी चुनाव आ रहा है। आईपी सिंह जी, आप सर ये बैरिकेड से आगे कब बढ़ेंगे? हर बात आप बैरिकेड पे फंस जाते हैं। मैं आपको सम्मान से पहले बोलने का मौका देता हूं, आप बैरिकेड के आगे नहीं बढ़ पाते। आप सबसे पहले ये कीजिए, आप लखनऊ जाइए और जो अखिलेश यादव जी का घर है ना, उसके बाहर भी पुलिस की बैरिकेड है। आप बोल दीजिए अखिलेश जी खतरे में, हटा लो बैरिकेड, अगर बैरिकेड से इतना ही दिक्कत है तो। अभी आप कीजिएगा, सही में बोल रहा हूं मैं, आप ये एक्सरसाइज कीजिए, उसका वीडियो बनाइए और आप उसको सोशल मीडिया पे डालना चाहिए आपको। आईपी सिंह जी क्या बोलूं सर मैं आपको, बैरिकेड से आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम समाज में डर का माहौल है, खतरा है, बैरिकेड लगा दिया। सर यू शुड, आई एम टेलिंग यू आईपी सिंह जी, प्लीज थोड़ा सोच समझ के सर, प्लीज। आप सीनियर मेंबर है, ऐसे मत कीजिए। लेट्स मूव ऑन व्यूअर्स, लेट्स शिफ्ट आवर अटेंशन।